हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक्षा फ्रॉम कैड सेंटर। तो अगेन मैं आपके लिए लाई हूँ एक जॉब वैकेंसी। तो चलिए देखते हैं जॉब वैकेंसी कौन सी कंपनी की तरफ से है, कौन सी जॉब रोल है, क्या जॉब रोल है, कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है। ठीक है, तो इसके पहले ये जानते हैं कि ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट क्या कह रहे हैं। Hello friends, welcome to the section of job study. This is Kaustubh Panse, product architect, design your own university. Let's first understand what is this section all about. Guys, when we conducted the survey for students, about 500 people have filled the survey. The major pain area of student that in which we need to support them according to the survey is interview preparation. So for that reason, to prepare you for the interview, we have created this section. Yeah, so let me allow me to explain it one by one. Now, why you have to see this video? Why you have to take notes on this? See, the first reason is why you have to do it is you have to study the job market, because in a market, in a job kind of market, there are a lot of companies. So we want you to make very rational choices. So first study job market. Then once you understand market, then set your goal that I want to work in this profile. I want to set vision. I want to become like this person. I want to achieve this much salary. And then once you have set a goal, then you go for interview preparation. Begin your interview preparation. Right now, what is the whole agenda? See, my entire team is working with you. We are conducting interviews, and we have found out that students are not even aware of the name of the company. So imagine you want to work in a multinational company, but you don't know their names. So forget about their job profile, their clients, projects, everything. So here in every video, we will improve your knowledge just by 1%. We will improve your information by just 1%. Now you do it for 6 months. So from this knowledge, you will have the entire market study done. So you can make very good choices. Second reason is how do you prepare yourself for an interview? Because most of you are fearful about the interviews for a simple reason, you don't know what would be asked in that interview. So my recommendation is, whenever you are seeing this video, come with a diary, prepare notes. Yeah, you make a special job study diary. And finally, you explore the employer's website. That is very, very important. Because I have to prepare this video in a short while, I cannot explore it on my own. So you take your own time and explore it. The third point is what you have to do when you do this. It's a very simple process. First thing is you analyze your skills. I will be telling you what kind of skill requirement is there in the market. There are 3 kinds of skill requirement for any job profile. One is software skills, other is design skills, and third is soft skills. Yeah. So every company, depending upon, will have variable requirement in the 3 areas. So all these 3 areas, now analyze your skills. Yeah, how much designing skills you have, what kind of software skills you have, and what kind of soft skills you have. Yeah, and once you do this, just become aware of 2 things. What are these 2 things? These 2 things are, whenever you were seeing that video, were you having a sense of self-belief? Were you feeling confident in that area? Just be aware of that and note down those points. Now, you also see, fear is a very good indicator. Fear only means that you are not prepared in that area. So if they are asking, let's say for example this video, if this is asking you to have excellent spoken English skills and you feel fearful, अगर आपको डर लगा है, तो इसका मतलब आप वहाँ पे prepared नहीं हो. तो ये जो fear है, उसके भी point आप note down करो. यहाँ पे tension हो रहा है, stress हो रहा है, ये इसको mention करो. अभी क्या करना है कि जिस point पे आपको confident feel हो रहा है, उसको वैसे ही मत छोड़ो, verify करो. देखो उस पे कोई assignment solve करके, कैड सेंटर के ट्रेनर से जाके मिलो, पूछो कि सर ये मेरे स्किल्स बराबर है क्या, अपने लाइफ के ये पॉइंट देखो, है ना. अभी जहाँ पे आपको फियर महसूस हो रहा है, सिंपली आपको जाना है यूनिवर्सिटी में लॉगिन कीजिए. मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, उस सेक्शन में जाइए और खुद उसका प्रिपेयर कीजिए. या सो दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट द बिजनेस. ओके, अब आपको पता चला होगा कि ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जॉब वैकेंसी कौन सी है या फिर जॉब ओपनिंग कौन सी है. तो जॉब ओपनिंग है, आज की जॉब ओपनिंग है इंटीरियर डिज़ाइनर की. तो इंटीरियर डिज़ाइनर क्या है, कौन सी कंपनी से है, तो चलिए देखते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं या फिर उनका जॉब रोल क्या रहता है. अब जॉब वैकेंसी है इंटीरियर डिज़ाइनर की. अब इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं, उनका जॉब रोल क्या रहता है,
तो थोड़ा सा हम जो इंटीरियर डिज़ाइनर के बारे में जानते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं, तो डिटरमाइन द क्लाइंट्स गोल एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट्स, देन कंसिडर हाउ द स्पेस विल बी यूज्ड एंड हाउ मेनी consider how the space will be used and how people will move through the space, then sketch the preliminary design plans including electrical and partition layouts, then specify materials, furniture such as lighting, furnitures, wall finishes, flooring and plumbing fixtures, then create a timeline for the interior design project and estimate project cost, oversee construction and coordinate with general buildings, then contractors to implement the plans and specifications for the project, then visit the site after the project is complete to ensure that the client is satisfied। मतलब क्या, अब ये जब ये सब सुन के तो आपको पता चला होगा कि इंटीरियर डिज़ाइनर करते क्या है। तो इंटीरियर डिज़ाइनर शॉर्टली में बताती हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब क्लाइंट को फर्नीचर कौन सा चाहिए या फिर उसकी लाइटिंग कौन सी चाहिए। लाइटिंग में भी टाइप्स आते हैं कि मतलब उन्हें रेक्टेंगल लाइट चाहिए या फिर और कोई टाइप होगा लाइट का, कलर कौन से चाहिए लाइट में, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब क्लाइंट के रिक्वायरमेंट जो है वो अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। इंटीरियर डिज़ाइनर को वो डिज़ाइन करना पड़ता है प्लान, ठीक है। तो फिर उसका 3D मॉडल या 2D मॉडल जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। ये सब इंटीरियर डिज़ाइनर काम करते हैं, ठीक है। अब ये वैकेंसी कौन सी कंपनी की तरफ से आई है, तो चलिए देखते हैं कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने कंपनी की वेबसाइट दी है लक्स डिज़ाइंस करके। तो लक्स डिज़ाइंस क्या है, लक्स डिज़ाइन एक कंपनी है जो लाइटिंग के ऊपर काम करती है। मतलब लाइटिंग इफेक्ट जो है वो लक्स डिज़ाइन प्रोवाइड करती है। अगर आपको लक्स डिज़ाइन के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी वेबसाइट की लिंक डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब लक्स डिज़ाइन ये कंपनी तो है, लेकिन मैंने एक मेल का स्क्रीनशॉट अटैच किया है जो लक्स डिज़ाइन की तरफ से आया था, तो आप ये डिटेल में स्टडी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। लक्स डिज़ाइन कंपनी की ओपनिंग क्या है इंटीरियर डिज़ाइनर की। अब इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए उनको क्या क्या सॉफ्टवेयर की नीड है, तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है AutoCAD 2D एंड 3ds Max। जो दोनों सॉफ्टवेयर है वो दोनों भी सर्टिफाइड होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको AutoCAD 2D आता है तो आप यहाँ पे प्लेस हो सकते हो, या फिर आपको 3ds Max भी आता है तो भी आप प्लेस हो सकते हो। अब AutoCAD 2D सॉफ्टवेयर है क्या, तो AutoCAD 2D सॉफ्टवेयर जो है वो डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है। अब डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर मतलब क्या कि आप पहले ज़माने में जो हाथ से प्लान बनाते थे, हमें एरिया मिलता था, उस एरिया के ऊपर हमें कुछ 2 BHK या फिर बंगलों का प्लान ड्रॉ करना पड़ता था मेजरमेंट लेके। तो ये AutoCAD 2D जो है वो सिर्फ हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। मतलब क्या, हमें जो प्लान मिलेगा, हमें जो एरिया का डायमेंशन मिलेगा उसके हिसाब से हम एक प्लान बनाते हैं, वो विद द डायमेंशन, विद द प्रॉपर स्केल। उसके ऊपर आपका टाइटल ब्लॉक होता है, मतलब आपको आपका नाम रहता है, आप आपका नाम डाल सकते हो या फिर आपका क्लाइंट का जो नाम है वो भी डाल सकते हो। आप कौन से स्केल के ऊपर ये ड्रॉ कर रहे हो, 1:2 या 1:1 होता है स्केल, वो स्केल भी आप वहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। फिर नॉट डायरेक्शन रहती है, वो भी आप AutoCAD 2D में दिखा सकते हो, ठीक है। तो AutoCAD 2D जो है वो एडवांस सॉफ्टवेयर है। AutoCAD 2D जो है वो बेसिक सॉफ्टवेयर है सिविल स्टूडेंट्स के लिए, या फिर इंटीरियर या फिर कोई भी मैकेनिकल इंटीरियर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स है उनके लिए AutoCAD 2D ये बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डिटेलिंग दिखाते हैं, ठीक है। अब 3ds Max सॉफ्टवेयर क्या है, तो 3ds Max सॉफ्टवेयर जो है वो एक मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। ये मोस्टली इंटीरियर डिज़ाइनर के स्टूडेंट्स ज़्यादा तो यूज़ करते हैं, इंटीरियर फर्म्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब 3ds Max ये तो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसमें एनिमेशन भी होता है। ये 3ds Max में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं। मतलब अगर हमें एक सोफ़ा बनाना है, हमें क्लाइंट के हिसाब से सोफ़ा बनाना है, अगर हमें सोफ़ा के डायमेंशंस पता है और हमें वो सोफ़ा प्रॉपर उसके हिसाब से बनाना है, मतलब जो उसके लेग्स जो रहते हैं या फिर उसकी थिकनेस या फिर उसका मटेरियल जो भी है वो हम 3ds Max में बना सकते हैं। मतलब 3ds Max में क्या है कि कंपोनेंट्स बना सकते हैं हम हमारे हिसाब से, हमें जो चाहिए वो कंपोनेंट्स एज इट इज़ बना सकते हैं। फिर उसमें बहुत से कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे किचन कैबिनेट रहता है या फिर सोफ़ा, चेयर, इंटीरियर के जो भी कंपोनेंट्स है, टीवी यूनिट होगा, ये सब कंपोनेंट्स हम 3ds Max में बना सकते हैं, ठीक है। 3ds Max जो है वो मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। मतलब हम इसमें इंटीरियर तो कर ही सकते हैं, कंपोनेंट्स बना सकते हैं, प्लस हम इसमें आउटर का एक्सटीरियर व्यू भी बना सकते हैं, एक्सटीरियर व्यू भी दिखा सकते हैं, एक्सटीरियर व्यू का रेंडरिंग भी कर सकते हैं। प्लस वो रेंडरिंग मतलब क्या कि हम एक विजुअलाइजेशन फॉर्म बना सकते हैं। मतलब क्या कि हमारा आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हम पहले विजुअलाइज कर देते हैं, तो उसमें लाइटिंग इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, सन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर नाइट व्यू ऐड कर सकते हैं। ये सब जो है 3ds Max में होता है, 3ds Max में होता है।
तो 3ds Max एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है इंटीरियर स्टूडेंट्स के लिए या फिर आर्किटेक्चर के लिए जिनको अपना करियर इंटीरियर में करना है, उनके लिए 3ds Max बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो 3ds Max और AutoCAD ये दोनों सर्टिफाइड होने चाहिए, दोनों का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनर की पोजीशन पा सकते हो। अब सैलरी क्या होगी इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए? लक्स डिज़ाइन में सैलरी क्या है? तो सैलरी क्या है, कंपेंसेशन एज ए फ्रेशर के लिए क्या है, इंटर्नशिप है जो उन्हें स्टाइपेंड प्रोवाइड की दी जाएगी, और जिनका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उन्हें 8 to 12 के पर मंथ सैलरी होगी। ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़िया अमाउंट है, 8 to 12 के इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो आपको ऑफिस वर्क तो मिलता है जहाँ पे आप जाके साइट पे जाके काम करते हो, उससे अच्छा है कि आप ऑफिस में बैठ के अच्छा सा काम करो, और 8 to 12 के इज़ अ गुड अमाउंट। ठीक है, तो एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आपको 8 to 12 के सैलरी मिल जाएगी, और जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको स्टाइपेंड मिलेगा। अब कंपनी को क्या चाहिए, AutoCAD और 3ds Max। अगर आपको AutoCAD सॉफ्टवेयर नहीं आता या फिर 3ds Max सॉफ्टवेयर भी नहीं आता आपको, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी पोर्टल है, तो आप यूनिवर्सिटी पोर्टल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करो यूनिवर्सिटी पोर्टल को, और वहाँ से आप 3ds Max और AutoCAD सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। अब यूनिवर्सिटी पोर्टल क्या है, तो यूनिवर्सिटी पोर्टल हमारा डिज़ाइन योर ओन यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है जहाँ पे सारे सिविल, इंटीरियर और आर्किटेक्चर और मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर्स के कोर्सेज वहाँ पे सीख सकते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब पोर्टल में भी सारे कोर्सेस है, जैसे कि मैंने बताया मैकेनिकल के, इंटीरियर के, आर्किटेक्चर के, सिविल के कोर्सेस है, जैसे और सॉफ्ट स्किल्स के भी, स्किल अप के भी कोर्सेस है। तो वहाँ पे जाके आप कहाँ पे जाके चेक करोगे ये सब कोर्सेस? वहाँ पे कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो AutoCAD सॉफ्टवेयर आप कहाँ पे जाके सीख सकते हो यूनिवर्सिटी में? तो यूनिवर्सिटी को अगर सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पे मॉडलिंग फंडामेंटल्स का एक सेक्शन होगा, उसमें स्पेस डिज़ाइन का एक सेक्शन होगा। तो स्पेस डिज़ाइन में जाके AutoCAD सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो। वैसे सिमिलर आप 3ds Max सॉफ्टवेयर भी सीख सकते हो, जैसे कि मॉडलिंग फंडामेंटल्स में जाके, स्पेस डिज़ाइन में जाके आप 3ds Max सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। तो ये तो हो गया मैक्स और 3ds Max और AutoCAD के बारे में, ये तो हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप सॉफ्टवेयर वहाँ से सीख सकते हो। और एक चीज़ मैंने बोली थी जैसे कि स्किल अप सेक्शन क्या है, तो स्किल अप मतलब क्या? अब आपको मैक्स आता है, AutoCAD भी आता है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाके आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, या फिर अगर आपके पास क्लाइंट है लेकिन आपको क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट है वो आप समझ नहीं पाते, या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो कहना है वो आप क्लाइंट तक पहुंचा नहीं सकते, तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यू में जाने के लिए आपके इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सब जो है वो भी आप यूनिवर्सिटी पोर्टल में सीख सकते हो, यहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हो यूनिवर्सिटी पोर्टल से। तो इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो स्किल अप सेक्शन में इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स का एक सेक्शन है, वहाँ पे जाके आप प्रिपेयर कर सकते हो। सेम एक्सेलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, सेम वो भी स्किल अप सेक्शन में 5 इजी स्टेप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे जाके आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ जो है वो तो आपको हेल्पफुल रहेगी, मतलब AutoCAD और 3ds Max ये तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही, लेकिन स्किल अप सेक्शन जो है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी सॉफ्टवेयर्स भी है यूनिवर्सिटी पोर्टल में, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करो, और जल्दी से जल्दी आपकी इंटीरियर पोजीशन की जो वैकेंसी है वो आप ग्रैब कर सकते हो। अगर आप इस पूरे कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो यूनिवर्सिटी पोर्टल को आप सब्सक्राइब करो। अब मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी पोर्टल की मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है, यूज़र इंटरफेस है ये सिर्फ, तो आप मतलब हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी दिखती है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो, आपकी स्किल अप सेक्शन जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी इस दिए गए नंबर पर कॉल करो, इंक्वायरी करो, या फिर आप मेल भी कर सकते हो। ठीक है, सो ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी सून एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।